Hello students, welcome back. I am Mrs. Reena Dalal. I hope you all are enjoying your study. Today we will start a new chapter. We have done our chapter 1 and chapter 2 of geography, and today we will start our chapter 3 of geography. Chapter 3 of geography. And what is the name of this chapter? The name of this chapter is Our Changing Earth. What is the name of this chapter? The name of this chapter is Our Changing Earth. What the name suggests? The name of this chapter suggests that our earth is changing. It is very surprising that the earth on which we live, it is changing. But it is true that due to some activities our earth is changing. Now the question arises, can we see these type of changes, or how our earth is changing? I will say that a number of changes take place inside or outside the earth. Inside or outside the earth. What's your opinion about these type of changes? Have you seen them? If you are thinking about roads, houses, dams, ponds. If you are thinking about roads, houses, dams, ponds, then you are also right, because all these are changes. अगर आप सोच रहे हो, आप देख रहे हो कि आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे नए रोड्स बन गए हैं, बहुत सारे नए हाउसेज बन चुके हैं, बहुत सारे डैम्स आप देखते हैं और बहुत सारे न्यू पॉन्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, देन ऑल दीज आर चेंजेस ऑल्सो एंड दे आर चेंजिंग आवर अर्थ. यू आर राइट, बट ऑल दीज चेंजेस आर ह्यूमन made. These changes are human made. There is one more type of changes, and that are natural changes. Natural changes also change our earth. For example, formation of mountains, rocks, flood plains, deltas, etc. ये सभी क्या हैं? These are the natural changes. They also change our earth, and these are human made changes. They also change our earth. मीन्स हमारे अर्थ के ऊपर जो भी चेंजेस होते हैं वो ह्यूमन मेड चेंजेस के थ्रू भी होते हैं और नेचुरल चेंजेस के थ्रू भी होते हैं. बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम नेचुरल एक्टिविटीज that take place inside or outside the earth, and they are changing our earth. So what we are going to study in this chapter? We will study lithospheric plates, volcano, earthquake, major landforms. We will discuss about all these things one by one. First of all, we will discuss about lithospheric plates. What are lithospheric plates? I told you in chapter 2 that there are 3 layers of our earth. How many layers? 3 layers. Crust, mantle, and core. These are the 3 layers of our earth. Crust is the uppermost layer of our earth, and core is the innermost layer of our earth. Now what are lithospheric plates? हम क्या कह सकते हैं? Lithospheric plates, the earth crust is made up from several large or small fragments
or slabs, or we can say plates. Listen once again. Arch crust, this layer, we are talking about this layer. Arch crust is made up of several large or small plates, and these carry continents and ocean floor. ये जो हमारी crust है, it is made up from several large or small plates. ऐसे बहुत सारी प्लेट्स से मिलकर हमारी जो क्रस्ट है वो बनी है. एंड दिस कैरी कॉन्टिनेंट्स लाइक दिस, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर. यहाँ कॉन्टिनेंट्स पर हमें बहुत सारे माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं. ये जो प्लेट्स है ये क्या करते हैं? दे कैरी कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज ओशियन फ्लोर्स. दीज आर लिथोस्फेरिक प्लेट्स. In other words, we can say that lithospheric plates are the regions. Lithospheric plates are the regions. Regions means areas. These are the regions of Earth, Earth's crust, and upper mantle. And upper mantle. These are the regions of the Earth's crust and upper mantle, and these regions are fractured. These regions are fractured. Why fractured? They are fractured due to motion of molten magma. Molten magma. लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या हैं? जो हमारे अर्थ की क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है, इसके कुछ रीजन्स, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो फ्रैक्चर्ड हो गए, जो टूट गए हैं. किसकी वजह से टूटे? ड्यू टू मोशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा. नाउ कम हियर. ये हमारी क्रस्ट है, इसमें आपको ये बहुत सारी ऐसी प्लेट्स दिखाई दे रही है. इट मीन्स हमारी जो क्रस्ट है किससे बनी हुई है? सेवरल लार्ज और स्मॉल प्लेट्स, एंड दीज कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर. दीज आर lithospheric plates, and these lithospheric plates are also called tectonic plates. Tectonic plates. What is the other name of lithospheric plates? Lithospheric plates are also known as the tectonic plates. अब ये जो lithospheric plates हैं इनकी कुछ features होती हैं. Features of lithospheric plates. Features like rigid. Lithospheric plates are very rigid, means they are very hard. अब इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स और साथ में ओशन फ्लोर को भी ये कैरी किए हुए हैं. इट मीन्स हमारे कॉन्टिनेंट्स, ओशन फ्लोर किसके ऊपर टिके हुए हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर. अब इतने बड़े कॉन्टिनेंट और ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है जो कैरी करते हैं, इट मीन्स दे आर वेरी हार्ड, दे आर रिजिड. ओके. नेक्स्ट इज irregular shape. Irregular shape. Lithospheric plates are of irregular shape. Irregular means जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, उनकी शेप कुछ भी हो सकती है. सभी की सेम शेप नहीं होती है, इरेगुलर शेप होती है. Okay, these are the features of the lithospheric plates, and lithospheric plates are also known as the tectonic plates. These lithospheric plates move. Okay, these lithospheric plates move, but their movement is very slow. They move just a few millimeters. Few millimeters in a year. Millimeter, we know that it is a very small unit. हमारी जो प्लेट्स हैं 1 ईयर के अंदर जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स ही मूव करती है. मीन्स देयर मूवमेंट इज वेरी वेरी स्लो. दैट्स वाई वी डोंट फील सच टाइप ऑफ मूवमेंट. बट वाई दीज लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, और वट आर द रीजन्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स? Regions why lithospheric plates move. We can say that lithospheric plates move because of the motion of the molten magma. Molten magma.
अब ये मैग्मा क्या होता है? वी कैन से दैट इट इज़ वेरी हॉट लिक्विड रॉक फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। और ये जो मैग्मा है, ये मोल्टन, ये पिघला हुआ मैग्मा है, और इसके अंदर जो मोशन होती है, जो मोमेंट होती है, उसकी वजह से हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो क्या करती हैं? मूव करती हैं। अब जैसे ये जो मैग्मा है, मैग्मा कहाँ मिलता है? मैग्मा इज फाउंड इन मेंटल। ओके, हमारी इस लेयर के अंदर मैग्मा मिलता है। ये जो मैग्मा है ये सर्कुलर मैनर में मूव करता है। सर्कुलर मैनर कैसे? सर्कुलर मैनर। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एक बर्नर लिया, ओके, और इसके ऊपर हमने एक वाटर से भरा हुआ एक बीकर रखा इसके ऊपर। जैसे ही हम ये गैस जैसे ऑन करेंगे तो क्या है, इस वाटर को नीचे से हीट मिलनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही इसको हीट मिलेगी, ये जो वाटर है क्योंकि नीचे से हीट मिल रही है, इस वाटर के अंदर ऐसे छोटे छोटे बुलबुले से बनने क्या है शुरू हो जाएंगे, बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, और ये बबल ऊपर की साइड आएंगे, ऐसे आएंगे, ये बबल्स ऊपर की साइड आके ऐसे सर्कुलर मैनर में मोशन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि क्या है, इसको नीचे से हीट मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर जो वाटर है वो क्या है, सर्कुलर मैनर में मूव कर रहा है। अगर अब हम क्या करें, इस बॉइलिंग वाटर के अंदर क्या करें, कोई भी एक पेपर लिया, उसका एक पैलेट बना के हम और इस वाटर के अंदर डाल दें, तो वो जाके कहाँ पर कैरी करेगा, कहाँ पर टिकेगा, इस वाटर के ऊपर। ओके, उसका सरफेस क्या है जहाँ पर वो टिकेगा जाके, क्या है, वाटर। लेकिन क्योंकि हीट मिल रही है नीचे से, इसलिए वाटर के अंदर तो मोमेंट हो रही है, सर्कुलर मैनर में ये वाटर क्या है, मूव कर रहा है। ओके, नीचे से मूव कर रहा है। अब जो हमने पेपर पैलेट इसके अंदर डाला है वो भी साथ में क्या करेगा, मूव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो किस पर टिका हुआ है, वाटर के ऊपर। वाटर ही जब ऐसे ही मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली जो पेपर पैलेट है वो भी क्या करेगा, मूव करेगा इसके साथ साथ। ओके, सेम यही चीज हमारे यहाँ लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर अप्लाई होती है। मैंने क्या बताया आपको, लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती है। क्यों करती है? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा। हमारा जो मैग्मा है वो यहाँ मेंटल में मिलता है, और ऐसे सर्कुलर मैनर में क्या है, जो मैग्मा है वो मोशन करता रहता है। मीन्स यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, और क्या है, इस मैग्मा के ऊपर, इस मेंटल के ऊपर ही हमारी क्या है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो टिकी हुई है। अब नीचे से ये मैग्मा ही जब मूव करेगा, जब हिल रहा है, तो इसके ऊपर जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स है दे विल ऑल्सो मूव। ओके, दैट्स वाई आवर लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव। वाई दे मूव? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा आवर लिथोस्फेरिक प्लेट्स move, and this molten magma moves in a circular manner. ओके, अब जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, इसके अंदर नीचे से इसको हीट मिल रही है। हमने जैसे गैस ऑन की, इसको तो हीट मिल गई यहाँ से, लेकिन यहाँ ये जो मैग्मा मिलता है मेंटल के अंदर, इसको हीट कहाँ से मिलेगी? बनता है ना क्वेश्चन। तो क्या है, आई टोल्ड यू 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आवर अर्थ, और ये जो कोर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर है। ओके, ग्रेट हीट एंड प्रेशर वी फाउंड इन द कोर। अब यहाँ से जो हीट है वो क्या है, मेंटल को मिलती है। जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर है, और यही हीट नीचे से जो मेंटल है या जो मैग्मा है उस तक पहुँचती है। इसी वजह से यहाँ मेंटल के अंदर जो भी रॉक्स होती है वो मेल्ट हो जाती है और वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर नीचे से क्या है, कॉन्टीन्यूसली जो हीट इसको मिलती रहती है। इसी वजह से ये जो मैग्मा है ऐसे यूं सर्कुलर मैनर में क्या है, मूव करता रहता है। अब ये मूव कर रहा है, ये हिल रहा है, इसके ऊपर हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स टिकी हुई है, तो वो भी क्या करती है, इसके साथ साथ मूव करती हैं। बट आई टोल्ड यू दैट दे मूव वेरी स्लोली, they move just a few millimeters in a year, that's why we don't feel these type of changes. ओके, अब हम क्या पढ़े इस चैप्टर के अंदर, आवर अर्थ चेंजिंग अर्थ, हमारी जो अर्थ है उसके अंदर चेंज हो रहे हैं, उसके लिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब ये जो प्लेट्स मूव कर रही है, इस मूवमेंट की वजह से हमारी जो अर्थ है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो कैसे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल
ये कोई भी दो प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, एंड दे आर मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर। ओके, ये दोनों ऐसे मूव कर रही हैं, जैसे जैसे मूव करती जाएंगी ये दोनों एक दूसरे से ऐसे कोलाइड करेंगी, ऐसे एक दूसरे से स्ट्रक करेंगे, ऐसे एक दूसरे से टकराएंगी। और टकराने के बाद क्या होगा, हो सकता है कि एक प्लेट्स इसके ऊपर चली जाए और ये वाली प्लेट्स इसके नीचे आ जाए। तो इससे क्या होगा, प्लेट्स की वजह से कुछ पार्ट यूँ ऊपर की तरफ उठेगा। ओके, और इससे क्या है, हमारी अर्थ के ऊपर क्या बनेंगे, माउंटेन्स बनेंगे। ओके, माउंटेन्स। ये अदर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं एंड दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये एक दूसरे से ऐसे ही दूर जा रही है। ओके, इससे क्या होगा, ओशियन फ्लोर क्रिएट होता है। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारी अर्थ चेंज हो रही, किस वजह से, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यहाँ ये क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स ने अपनी मूवमेंट की और इसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।